So, welcome. We are studying the basic terms which are utmost important to understand Mendelian laws of inheritance or the principles that govern inheritance and variation. Not only that, these basic terms, if you listen very carefully, and more particularly, if you remember the examples that I am quoting to simplify the term, then you will find it easy to solve whatever the problems are asked on this chapter. मैंने कहा ये जो बेसिक टर्म हम लोग इस लेक्चर में पूरी करने वाले हैं, ये तो आवश्यक है मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को समझने। इतना ही नहीं, अगर आप ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनोगे और हर बार जहाँ भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो अगर आप ध्यान रखोगे, तो मैं विश्वास आपको दिलाता कि जब आप MCQ सॉल्व करोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी इंटरप्रेट करने में। तो देखो, इन प्रीवियस लेक्चर ओनली वी स्टार्टेड विद दिस बेसिक टर्म्स एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड अप टू जीन. So very hurriedly, what is character? It is a feature of an organism. For example, height of a plant. What is trait? It is a detectable variant of a character. So for example, if character is height of a plant, its variants that Mendel has seen, or you or me could see, it's tall or dwarf. If the character is seed shape, the variants those were noticed are either it is round or it is wrinkle. Then what is factor? So Mendel's own term factor means a particle which is responsible for inheritance of a trait and expression of a trait. Mendel said it is a unit of inheritance, means to transfer one character, there must be a one factor. See, this factor has slightly different forms. Means, suppose the height has two factors, two particles, one for tallness, other for dwarfness. So Mendelian factor today we call as gene. Nothing has changed. Mendel said a particle is responsible for inheritance and expression of a trait, and to that particle which he called factor, we people call as gene. So he was a genius man. He was not knowing meiosis, mitosis, chromosome, even a microscope. But still, whatever he speculated, predicted that the particle is a stable thing that inherit from generation to generation unchanged, and even the two different particle, factor, when came together, they do not blend. So is absolutely right. To which he call as a factor, we call as a gene. So what is gene? Sir, gene is again a unit of inheritance and expression of a trait. The term gene was proposed by Johansen in 1909. Gene is actually a segment of DNA having information for that trait. Genes are present on chromosome arranged in a linear manner. Suppose this is a chromosome. The marker is suppose a chromosome. So my nails are genes. So gene for a curly hair, gene for a brown eyeball, gene for a free earlobe, gene for narrow nostril, like that.
Now, this was a recap of a previous lecture. From here we are going to start now. आता लक्ष द्या. What is allele? इतका गोंधळ असतो विद्यार्थ्यांमध्ये. जीन काय, ॲलील काय, तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत सांगतो, तुम्ही फक्त लक्ष द्या. हे पहा, जो पार्टिकल कॅरेक्टर घेऊन जातो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, त्या पार्टिकलला मेंडल काय म्हणायचा? सर फॅक्टर. म्हणजे की एखादी माता भगिनी फेअर कलरची आहे, एखादी स्त्री गोऱ्या रंगाची आहे, तो एक पार्टिकल आहे ज्याच्यामुळे ती गोरी आहे. तोच पार्टिकल जर तिच्या मुलांमध्ये गेला तो मुलंसुद्धा होतील गोऱ्या रंगाची. सो धिस पार्टिकल वॉज कॉल्ड फैक्टर एंड वी कॉल इट एज अ जीन. तो सर ये तो हमें पता है. अब सुनो, द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ दैट जीन आर कॉल्ड ॲलील्स. म्हणजे सर जीन आणि ॲलील हे सारखंच आहे का? हो, जीन अँड ॲलील इज सेम. हार्डली यू कुड मेक अ डिफरन्स. पहा बरं, आता IA, IB, स्मॉल आय यांना तुम्ही काय म्हणता? तो सर आम्ही यांना अलील्स म्हणतो. बरोबर. मग यदि मुझमें मेरी माता से IA नाम का अलील आता है और मेरे पिता से स्मॉल आय नाम का अलील आता है, म्हणजे मला माझ्या आईकडनं IA नावाचा अलील आला आणि वडिलांकडनं स्मॉल आय आला, तर माझा जिनोटाईप काय? सर IA स्मॉल आय. माझा ब्लड ग्रुप काय? सर A. तो A ब्लड ग्रुप की वजह क्या है? सर आपके पास IA नाम का एक जीन है. तो ॲक्च्युली हे जीनच आहे, फक्त स्लाइटली डिफरंट फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील. काल मी छान सांगितलं तुम्हाला. मी म्हटलं की एखादा सॅमसंग S असेल, सो सॅमसंग 10S, आणि एखादा सॅमसंग 10S प्लस असेल, तो है तो 10S, एक थोड़ा अलग है. तो सर ये अलील बनते क्यों होंगे? म्हणजे हे तिन्ही जीन्स आहे, अलीलही आहे, तो हे बनतात कशामुळं? म्युटेशन. तो पहा ना, कॅरेक्टर हाईट, तर त्याचे स्लाइटली डिफरंट फॉर्म जे आहेत. सो टॉल हाईट, ड्वार्फ हाईट, तो कॅपिटल T, स्मॉल t, तो हे आहे alleles or allelomorph. This term was again proposed by William Batson, the fellow who proposed the term genetics. आता पहा, आपल्याला ॲलील म्हणजे काय समजलं? तो सर आप कहते कि जीन के जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स रहते, दे आर कॉल्ड एलील्स ऑफ ईच अदर. जैसे कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल I, स्मॉल i, कैपिटल A, स्मॉल a, हे कोण आहे? एलील्स. अब एलील ऑक्युपाय सेम प्लेस ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम. एलील ऑक्युपाय सेम पोजिशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम. म्हणजे काय? तो सुनो, हमारे शरीर में
जितनी सेल्स है, हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोझोम आहे. तो सर तुम्ही म्हणता आपल्या शरीराच्या प्रत्येक सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये 46 क्रोमोझोम्स है. भैया उसमें से 23 ओहम के जरिए हमारी माता से हमें प्राप्त हुए और बचे 23 स्पर्म के जरिए हमारे पिता से हमें प्राप्त हुए. तो सर आता हे समजलं की आपल्या शरीरात जेवढ्या सेल आहे, ट्रिलियन्स ऑफ सेल आहे. प्रत्येक सेलला न्यूक्लियस आहे. प्रत्येक न्यूक्लियसमध्ये 46 क्रोमोझोम आहे. तो ते 46 क्रोमोझोमपैकी 23 आपल्या आईकडनं आलेले असतात ओहममधून आणि 23 वडिलांकडून आलेले असतात स्पर्मद्वारा. आणि मग 23 आईचे आणि 23 वडिलांचे. मग मी इथे काढतो आता. सुनो. फर्स्ट फ्रॉम मदर, फर्स्ट फ्रॉम फादर. माता से पहला, पिता से पहला. सेकेंड फ्रॉम मदर, सेकेंड फ्रॉम फादर. माँ से दूसरा, पिता से दूसरा क्रोमोजोम. थर्ड फ्रॉम मदर, थर्ड फ्रॉम फादर. सो आईकडचा तिसरा, वडिलांकडचा तिसरा. ऐसे करते करते एंड सो ऑन. इट इज 23rd फ्रॉम मदर अँड 23rd फ्रॉम फादर. हे समजलं. आईचा पहिला, वडिलाचा पहिला, आईचा दुसरा, वडिलाचा दुसरा, आईकडचा तिसरा, वडिलांकडचा तिसरा, असं करत करत आईकडचा 23rd, वडिलांकडचा 23rd. पहा बरं आता. हर क्रोमोजोम कितनी बार है? 2 बार. पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 2 बार, ऐसे करते करते 23वां भी 2 बार. ऐसी सेल जिसमें हर क्रोमोजोम 2 बार है उसे डिप्लॉइड सेल कहते. ऐसा व्यक्ति डिप्लॉइड कहलाता है. तो आता हे जे काय आहे सर, क्रोमोझोमच्या पेयर, क्रोमोझोमच्या पेयर आहेत. तो सुनो. दिस इज 3rd फ्रॉम मदर अँड 3rd फ्रॉम फादर. सो आर दे नॉट मॉर्फोलॉजिकली आयडेंटिकल? यस सर. म्हणजे आईकडचा तिसरा आणि वडिलांकडचा तिसरा दिसायला सारखे आहेत का? हो सर. जेनेटिकली सेम आहेत का? हो. जेनेटिकली ऑल्सो दे आर आयडेंटिकल. समजा तुमच्या आईसाहेब फेअर कलरच्या असतील, तो इथे कॅपिटल F. आणि समजा तुमचे पिताश्री सावळ्या रंगाचे असतील, स्मॉल f. आईसाहेब कर्ली हेअरच्या असतील, कॅपिटल C. आणि वडील स्ट्रेट हेअरचे असतील, स्मॉल c. आईसाहेबांचे इयरलोब फ्री असतील, कॅपिटल R. वडिलांचे इयरलोब अटॅच असतील, स्मॉल r. आता ही जोडी मी इथे मोठी करून दाखवतो. सो कॅपिटल F, स्मॉल f, कॅपिटल C, स्मॉल c, कॅपिटल R, स्मॉल r. गोरा रंग, सावळा रंग. स्लाइटली डिफरंट फॉर्म ऑफ जीन म्हणजे अलिल्स. कर्ली हेअर, स्ट्रेट हेअर, फ्री इयरलोब, अटॅच इयरलोब. तो पहा, गोरा रंग आणि सावळा रंग
हे झाले स्लाइटली डिफरंट फॉर्म ऑफ अ जीन म्हणजे अलील. सो दे ऑक्युपाय द सेम पोजिशन ऑन अ होमोलॉगस क्रोमोझोम. तो सर होमोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे काय समजलं? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोझोम, जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोझोम, one inherited from maternal parent, other inherited from paternal parent, and such a pair is called a pair of homologous chromosome. काय समजलं? होमोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे काय? तो सर क्रोमोझोम की ऐसी जोड़ी जो दिखने को है सेम, जीन्स भी है सेम, उसमें से एक आया माता से और एक आया पिता से, ऐसी जोड़ी को कहते होमोलॉगस क्रोमोझोम. आता पहा बरं, ये थर्ड नंबर की पेयर कैसी है? होमोलॉगस क्रोमोझोम की पेयर है. पर क्या माता का तीसरा और पिता का पहला, आर दे सिमिलर लुकिंग? नो. आर दे जेनेटिकली आयडेंटिकल? नो. सो हे होमोलॉगस नाही, हे नॉन होमोलॉगस. तो सर अशा होमोलॉगस क्रोमोझोमच्या पेयर किती आहे? 23. होमोलॉगस क्रोमोझोमच्या अशा जोड्या किती असतात? 23 पेयर्स असतात. तो अब आपको एलील के बारे में क्या समझा? सर जीन चे स्लाइटली डिफरंट फॉर्म म्हणजे अलील. काल मी अजून एक उदाहरण दिलं होतं. एक वॅगनार VDI म्हणजे डिझेल आणि एक वॅगनार VXI म्हणजे पेट्रोल. दोनों में क्या अंतर है? स्लाइटली डिफरेंट है. ओनली द फ्यूएल इज डिफरेंट. सो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलील. एलील ऑक्युपाय सेम पोजिशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोझोम. म्हणून मी कालपासून असे दोन बोटं दाखवतो, पेयर ऑफ अ क्रोमोझोम. इथं डॉट काढतो आहे, अलील्स. अब देखो अलील्स पैदा कैसे होते नेचर में? ड्यू टू म्यूटेशन. स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन डेवलप्ड बाय म्यूटेशन इज कॉल्ड एलील. जनरली a gene has two allele. जनरली जीन हैज 2 allele. याद करो, मेंडल ने पी प्लांट के कितने कैरेक्टर का स्टडी किया? 7. हर कैरेक्टर के कितने फॉर्म्स है? सर 2. मतलब वहां हर जीन के कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शन. कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल I, कैपिटल I स्मॉल I, कैपिटल Y स्मॉल y. So generally a gene has 2 slightly different form called allele, but this is not 100% truth. पण सर हे तर 100% ट्रूथ आहे. कर्ली हेअर, स्ट्रेट हेअर, फ्री इयरलोब, अटॅच इयरलोब, ब्रॉड नॉस्ट्रिल, नॅरो नॉस्ट्रिल. पण मला सांगा ब्लड ग्रुप के अलील कितने हैं? अभी हमने यहां निकाले थे. सर 3 अलील है, IA, IB, स्मॉल I. सो व्हेन द एलील्स आर मोर देन 2 इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलेलिज्म, जो मेंडल नहीं जानता था. ब्लड ग्रुप इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म. तो अभी हमने एलील के बारे में सब कुछ देखा. देखो इतने ही विस्तार से मैं बताऊंगा. हे लेक्चर कोणी खूप मन लावून ऐकलं ना आणि माझे एक्झाम्पल लक्षात ठेवले तर त्याला मेंडलियन क्रॉसेसमध्ये, मेंडलियन जेनेटिक्समध्ये प्रॉब्लेम नाही जाणार. 200 बच्चों की बैच में से 25 बच्चों को ही मेंडल का स्कोर आता है. अच्छा, क्यों? क्योंकि ये चीजें कंसेप्चुअल है. यहां इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें समझना होगा. आगे चलो. तो आता
आपल्याला जीन समजलं आणि अलील समजलं. आता डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह सांगा. अलील म्हणजे काय? सर, स्लाइटली डिफरंट फॉर्म ऑफ अ जीन आर कॉल्ड allele. तो when they are together, slightly different form of a gene are called allele. When they are together, the one will phenotypically express, and one who will phenotypically express is called dominant allele. सर उदाहरण दीजिए. तो देखो, ये आप ही की केस आहे. तुमच्या आईसाहेबांकडनं तुम्हाला कोणते इयर लोब आले? सर, कॅपिटल आर फॉर फ्री. आणि वडिलांकडनं? सर, स्मॉल आर फॉर अटॅच. म्हणजे तुमच्यात इयर लोबसाठी किती अलील्स आहेत? सर, 2 आहे, फ्री आणि अटॅच. आप ध्यान दे रहे? आईकडून फ्री इयर लोब, बाबाकडून अटॅच इयर लोब. म्हणजे तुमच्यात किती अलील्स आले? 2 आले. मग असं होईल का हो की एक इयर लोब फ्री आईसारखा आणि एक अटॅच वडिलासारखा? नहीं सर, हमारे इयर लोब है फ्री. म्हणजे आउट ऑफ द 2 allele only one will express, and the one who express is called dominant. तो आप कौन है? F1. समजा तुम्ही कोण आहे? F1 आहे. तर तुमच्या माऊलीकडून काय आलं? कॅपिटल आर. वडिलांकडून काय आलं? स्मॉल आर. आणि तुमचे इयरलोब कसे आहे? फ्री आहे. म्हणजे कॅपिटल आर झाला एक्सप्रेस फिनोटिपिकली आणि स्मॉल आर रिमेन सप्रेस. तो बताओ, व्हॉट इज डॉमिनंट अलील? सर, आउट ऑफ द 2, the allele that express phenotypically is dominant allele, and the one who remains suppressed and do not express is called recessive allele. तो चलो एग्जाम्पल बताओ. तो सर, फ्री ईयर लोब डॉमिनंट, अटॅच ईयर लोब रेसेसिव्ह. किंवा ब्लड ग्रुपचं घ्या की समजा मला माझ्या आईकडनं आला IA आणि वडिलांकडनं आला स्मॉल आय. तो स्मॉल आय म्हणजे O आणि IA म्हणजे A. म्हणजे मला Aही आला आणि Oही आला. मग असं होईल का हो की आय एम आस्क व्हॉट इज युअर ब्लड ग्रुप, आय सेड AO? असं नाही होणार. आई विल से इट इज A. मतलब ये हुआ कि IA इज फिनोटिपिकली एक्सप्रेस. सो डॉमिनंट allele is out of the 2 dissimilar alleles, out of 2 dissimilar alleles, one who phenotypically expresses dominant and one who remain suppressed is called recessive. बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऐसे बच्चे नहीं पूछते. In last 20 years, no one came to me and asked कि सर what exactly dominant means. मतलब वो एक्सप्रेस होता मतलब क्या होता, और रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता मतलब क्या? तो मैं आखिरी में बताऊंगा जब लॉ ऑफ डॉमिनन्स आपको सिखाया जाएगा, त्यावेळी मी सांगेल. IA एक्सप्रेस होता मतलब वो एग्जैक्ट क्या करता? व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोटीन, आई मीन एंजाइम. अब देखो, डोमिनेंट एंड रेसेसिव के मेंडेलियन 7 कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल बताओ. तो सर, डोमिनेंट के एग्जाम्पल टॉल हाइट, राउंड सीड शेप, येलो सीड कलर, इन्फ्लेटेड पॉड.
ग्रीन पॉड कलर, ॲक्सियल पोजिशन ऑफ फ्लावर अँड व्हायलेट कलर. आणि रेसेसिव कैरेक्टर ट्रेट या अलील के एग्जाम्पल बताओ. तो सर ड्वार्फ हाइट, रिंकल सीड शेप, ग्रीन सीड कलर, येलो पॉड कलर, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड शेप, टर्मिनल पोजिशन ऑफ फ्लावर एंड वाइट फ्लावर कलर. ठीक है. इन अदर वे, द डोमिनेंट एंड रेसेसिव can be defined or kept in mind like this also. Sir, what is dominant? The allele which phenotypically express even in presence of another allele. So these are two allele. So who is dominant? The allele which is going to express even in presence of another allele is called as dominant. And recessive is the one who cannot make a phenotypic expression in presence of another allele. और हम लोग जैसे कैरेक्टर के ट्रेट किए थे, ट्रेट मीन्स अ डिटेक्टेबल वेरिएंट. तो a dominant trait and recessive trait is, sir, the trait that express in F1 generation is dominant and the trait that is not expressed in F1 generation is recessive. तो अभी अभी मैंने 7 डोमिनेंट ट्रेट बताए और 7 रेसेसिव ट्रेट बताए. अब देखो, recessive trait can express only if it is in homozygous condition. देखो ना, जब तक IA है, स्मॉल आई कभी एक्सप्रेस हो नहीं सकता. म्हणजे हा जो रेसेसिव्ह ट्रेट असतो ना किंवा रेसेसिव्ह अलील, तो दुसऱ्याच्या प्रेझेन्समध्ये एक्सप्रेसच होत नाही. तो तेव्हाच एक्सप्रेस होईल जेव्हा तो बाजूचा अलील नसेल. तो ओ ब्लड ग्रुप वाले का इसीलिए तो हम जीनोटाइप क्या लिखते, स्मॉल आई स्मॉल आई. या ड्वार्फ जो प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है, तो सर ड्वार्फचा जीनोटाइप स्मॉल टी स्मॉल टी. अब आखिरी बार सुनो, डोमिनेंट ट्रेट कैन बी expressed in homozygous as well as heterozygous condition. तो डोमिनेंट ट्रेट के एग्जाम्पल बताओ मेंडेलियन 7 कैरेक्टर में. सर डोमिनेंट ट्रेट है ग्रीन पॉड. तो ग्रीन पॉड कैन बी कैपिटल G ग्रीन और कैपिटल G स्मॉल g ग्रीन. सो अ डोमिनेंट ट्रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन homozygous as well as heterozygous condition. अब दूसरा एग्जाम्पल बताओ. तो सर एक्सिलरी फ्लावर, सो इट्स ए डोमिनेंट ट्रेट. सो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए. टॉल हाइट, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, like this. Now let us talk for phenotype and genotype. External appearance of an individual for particular genotype is called its phenotype. External appearance of an individual for particular genotype is called its phenotype. म्हणजे
किसी व्यक्ति का बाहरी स्वरूप क्या होगा? व्यक्ति प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। उसका बाहरी स्वरूप क्या होगा किसी एक जीनोटाइप के लिए, इसे कहा है फिनोटाइप। तो मैं आपको 5 एग्जाम्पल देता ये समझने के लिए कि एक्सटर्नल अपीयरेंस of an individual for particular genotype is called phenotype. Now you tell me what would be phenotype of following genotype? Capital I, capital I, capital A, capital A, IA, small I, small t, small r, small r. तो सर ये सब क्या है? जीनोटाइप। अब इनके एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा? तो सर वन हु इज कैपिटल आई, इन्फ्लेटेड पॉडेड, कैपिटल ए, axial flower, IA, small I, A blood group, small t, dwarf, small r, wrinkled seed. तो wrinkled seed, dwarf height, A blood group, axial position of flower and inflated pod, हे काय झाले? फिनोटाइप. Remember, phenotype changes with age, environmental condition and development stage. तो सर तुम्ही म्हणता की हा जो फिनोटाइप असतो हा वयानुसार, वातावरणानुसार आणि शरीराच्या विकासानुसार बदलत असतो. कसा? समवन हॅज अ जीनोटाइप कैपिटल F फॉर फेअर कलर, ओके, एग्जाम्पल आहे, अँड कंटिन्युअसली ही इज इन अ स्कॉर्चिंग सन इन अ साउथ पार्ट ऑफ अ कंट्री, स्ट्राइविंग हार्ड ऑन द फील्ड, सो द कॉम्प्लेक्शन विल बिकेम ब्लॅकिश. म्हणजे कोणी जेनेटिकली कसा आहे? गोऱ्या रंगाचा आहे, पण तप्त उन्हामध्ये शेतामध्ये कष्ट करतो आहे आणि दक्षिण भारताकडे तो राहतो. तर जिनोटिपिकली तो फेअर असूनही फिनोटिपिकली कसा दिसतो? ब्लॅकिश. पहा इन्व्हायरमेंटचा फरक पडला. सर्टन प्लांट कैपिटल टी तो कैसा होना चाहिए? सर टॉल. बट यदि it is grown in a poor soil, not well watered, so will it be tall then? नाही सर. म्हणजे सीड आहे कैपिटल टी टॉलचं, त्याला तुम्ही रेताळ जमिनीमध्ये लावलं, न्यूट्रिएंट्सच नाही, पाणी नाही, तर ते ड्वार्फच होईल. म्हणजे बदलला की नाही फिनोटाइप? तो फिनोटाइप बदलतो वातावरणानुसार, वयानुसार आणि डेव्हलपमेंटल स्टेजनुसार. तो फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस एन्व्हायरमेंट. एखादा प्लांट टॉल आहे, आप ध्यान दीजिए, एखादा प्लांट टॉल आहे, तर टॉल काय आहे? फिनोटाइप. दिसतंय ना टॉल, तो जो दिसतो तो फिनोटाइप. आता जीनोटाइप, तो सर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. कारण टॉल हाईट ही काय आहे? डॉमिनंट ट्रेट आहे, and it can be expressed in homozygous as well as heterozygous condition. अब सुनो,
फिनोटाइप इज जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। तो ये भले ही उसका जीनोटाइप हो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, इट मस्ट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, इट मस्ट गेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अ ब्राइट सनलाइट, अ प्रॉपर कार्बन डायऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। नुसतं काही कॅपिटल टी इन कॅपिटल टी स्मॉल टी मुळेच कोणी प्लांट टॉल होतं का? म्हणजे जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप है क्या? नहीं, साथ में क्या इम्पॉर्टंट है? इन्व्हायरमेंट। इन्व्हायरमेंट महत्त्वाचं असतं, म्हणजे त्याला न्यूट्रिएंट भेटले पाहिजे, CO2 भेटलं पाहिजे, ऑक्सीजन भेटलं पाहिजे, ब्राइट सनलाइट भेटला पाहिजे। और यहाँ हमें एक सीख मिलती है, लेसन। आप विचार करो, आपके माता पिता जो बहुत अच्छे हैं जेनेटिकली, तो जाहिर है कि वही अच्छे अच्छे जीन आप सब में आए। म्हणजे तुमचे माझे मायबाप जेनेटिकली उत्तमच आहेत, म्हणून आपला जीनोटाइप उत्तम आहे। पण जर नाही भेटलं प्रॉपर एन्व्हायरमेंट, तर आपलं व्यक्तित्व चांगलं विकसित होणार नाही। म्हणजे व्हाय द पेरेंट्स आर स्ट्राइविंग हार्ड टू एज्युकेट यू इन अ गुड अँड हेल्दी इन्व्हायरमेंट अँड ॲटमॉस्फियर। का एखादी शाळा जी नाव रूपाला येते, रेपुटेशन वहाँ का अच्छा है, वहाँ सख्त डिसिप्लिन है, टीचर्स वहाँ के अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो वहाँ कतार लगती है। सो योर पेरेंट्स वॉन्ट्स टू गिव यू अ गुड इन्वायरमेंट बिकॉज ऑलरेडी यू हैव अ गुड जीनोटाइप। सो आपण कोण्या मित्रमैत्रिणींमध्ये राहतो, आपल्या कानावर कसे विचार पडतात, आपण समाजातून काय चांगलं घेतो, त्यानुसार व्यक्ति घड़त असतो। मैं तो ये कहूँगा कि कोई अधिक ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बट उसके दोस्त मेहनती है, उसे अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो वो निश्चित अच्छी तरक्की कर सकता है। सो रिमेंबर दिस लाइन, फिनोटाइप इज जीनोटाइप प्लस इन्व्हायरमेंट। तो आत्ता आपल्याला समजला फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब मुझे बताओ, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल आई, क्या होगा फिनोटाइप? तो सर कैपिटल टी टॉल, स्मॉल आर रिंकल सीड, कैपिटल आई स्मॉल आई फ्लैट पॉड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जी स्मॉल जी। कोशिश करो सर, येलो सीड ग्रीन पॉड, स्मॉल वाई कैपिटल जी। कोशिश करो सर, स्मॉल वाई ग्रीन सीड, कैपिटल जी ग्रीन पॉड। सो ग्रीन सीड एंड ग्रीन पॉड। तो ये हो गया व्हाट इज फिनोटाइप। नाउ जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन of an individual for certain phenotype। म्हणजे हमें जो दिखता वो फिनोटाइप है कि टॉल है या ड्वार्फ, राउंड है या रिंकल, ये हमें दिखता। सो जो दिखता वो फिनोटाइप, बट उस व्यक्ति का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर सर्टन फिनोटाइप इज कॉल्ड जीनोटाइप। वापस हम 5 एग्जाम्पल लेंगे। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द MCQs।
अब ये सभी क्या है? जीनोटाइप। हमें बताना है फिनोटाइप। देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैपिटल टी विल एक्सप्रेस, सो इट इज टॉल. Capital R, small r, again law of dominance. Capital R will express. So tall, round seeded. Capital Y, small y. तो seed color is yellow. Small g. Pod color is also yellow. Small y, capital I, small I. Small y, तो seeds are green. Capital I, small I, pod shape is inflated. Capital A, small a, axial flower. Capital C, small c, violet flower. Capital T, tall. Small r, wrinkled. तो सर जीनोटाइप वरून आपण सांगितले फिनोटाइप, किंवा फिनोटाइप वरून आपण लिहितो जीनोटाइप. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता. Suppose a plant is tall with a round seed. एक प्लांट टॉल आहे आणि सीड कशी आहे? राउंड. क्या है भैया इस प्लांट का जीनोटाइप? तो सर तुम्ही आम्हाला सांगितला फिनोटाइप और हमें बताना है आपको जीनोटाइप. चलो बताओ. तो सर टॉल के लिए कमस कम आवश्यक है कॅपिटल टी. टॉलसाठी कॅपिटल टी पाहिजेच. आणि राऊंडसाठी आवश्यक आहे कैपिटल आर. अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक. तो सर हो सकता कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर. ये भी हो सकता कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर. यहां मैंने रेसेसिव डाल दिया. ये भी हो सकता कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर. मैंने इसे रेसेसिव कर दिया. ये भी हो सकता कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर. तो फिनोटाइप, इसके जीनोटाइप कितने हो सकते? 4. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. फिनोटाइप दिखता है, जीनोटाइप हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है. अब ये कैसे काम में आता है देखो. सपोज द MCQ इज अ प्लांट heterozygous for axial flower, cross with a plant with terminal flower. What will be the phenotypic ratio of its progeny? तो सर एक प्लांट आहे जो एक्सियल फ्लावर वाला है पर हेट्रोजाइगस. तो अ प्लांट विच हैज एक्सियल फ्लावर is crossed with a plant with terminal flower, and given data said the plant with axial flower is heterozygous. तो सर कैपिटल ए, स्मॉल ए, टर्मिनल फ्लावर स्मॉल ए, स्मॉल ए. गमिट्स कैपिटल ए, स्मॉल ए. सेग्रिगेशन, दोन्ही अलील कधी एका गमिटमध्ये जात नाही. गमिट इज ऑलवेज हॅप्लॉइड, इंडिव्हिज्युअल इज डिप्लॉइड.
और यहाँ स्मॉल ए. तो सर why one type of gamete? Homozygous individual produces one type of gamete. Progeny capital A small a, axial small a, terminal. तो जब आप हेट्रोजाइगस एक्सियल को टर्मिनल फ्लावर वाले के साथ क्रॉस करोगे तो प्रोजेनी में 100 प्लांट मिले या 1000, वो होंगे 50-50 एक्सियल एंड टर्मिनल. तो इसीलिए हमें फिनोटाइप, जीनोटाइप ये पता चाहिए. अब हम लोग आगे जाएंगे. नाउ सी होमोजाइगस, an individual having identical or similar allele, an individual having identical or similar allele for certain trait is said to be homozygous for that trait. मग आता मला सांगा, पी प्लांटचा एखादा कॅरेक्टर. सर सीड शेप, ठीक आहे. सो सीड शेप इज अ कॅरेक्टर. आता सीड शेपचे व्हॅरियंट्स किती आहे? मेंडल ने कितने प्रकार के सीड शेप देखे हैं पी प्लांट में? सर 2, राउंड एंड रिंकल्ड. ओके, सो व्हाट इज राउंड? अ ट्रेट. रिंकल्ड अ ट्रेट. सो एन इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल और सिमिलर एलील फॉर अ गिवन trait. So capital R. An individual having identical allele for a given trait, small r, is said to be homozygous for that trait. दूसरा एग्जाम्पल बघा. एक दादा आहे, त्याचा ए ब्लड ग्रुप आहे आणि त्याची ताई आहे, ताईचा ए ब्लड ग्रुप आहे. सो भैया का ब्लड ग्रुप ए, दीदी का ब्लड ग्रुप ए. ठीक है. अब फर्ज करो कि ये जो भैया है इनको माता से आया IA, पिता से आया IA, तो दिस फेलो इज होमोजाइगस फॉर ए. आता ही जी ताई आहे, आईकडून आला IA आणि बाबाकडून आला स्मॉल आय. आईकडून IA आणि बाबाकडून आला स्मॉल आय. सो भले ही ताई का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, बट ताई कैसी है? हेट्रोजाइगस. सो एन इंडिविजुअल विथ आइडेंटिकल अलील फॉर अ गिवन ट्रेट इज सेड टू बी होमोजाइगस, and an individual having dissimilar allele for a given trait is said to be heterozygous. अब देखो, so in case of pea plant, the trait is round seed and wrinkle seed. So homozygous round. होमोजायगस राउंड. तो सर होमोजायगस म्हणजे असा व्यक्ती ज्याच्यामध्ये दोन्ही अलील असतात सेम, कॅपिटल आर कॅपिटल आर. हेट्रोजायगस राउंड. सो सर हेट्रोजायगस म्हणजे अन इंडिव्हिज्युअल विथ अ डिसिमिलर अलील्स. सो कॅपिटल आर स्मॉल आर. सो कॅपिटल आर इज अ होमोजायगस राउंड.
कैपिटल आर स्मॉल आर इज अ हेट्रोजाइगस राउंड. अब रिंकल ट्रेट, स्मॉल आर, तो रिंकल ट्रेट स्मॉल आर म्हणजे होमोजाइगस रिंकल. तो सर फिर हेट्रोजाइगस रिंकल कैसे होगा? सुनो, रेसेसिव ट्रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, रेसेसिव ट्रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. अब देखो, एक प्लांट है टॉल और सीड है रिंकल्ड. एक प्लांट है जो आंगन में आपने देखा कि टॉल है और उसके बीज कैसे है? रिंकल. सांगा बरं तुम्ही मला टॉल रिंकलचे काय असू शकतात जिनोटाइप? सर टॉल काय आहे? डॉमिनंट ट्रेट. सो कॅपिटल टी या कॅपिटल टी स्मॉल टी. म्हणजे डॉमिनंट ट्रेट कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन. बट रिंकल को कोई ऑप्शन है नहीं सर. सो टॉल रिंकल या तो हो सकता कैपिटल टी स्मॉल आर या कैपिटल टी स्मॉल आर. तो अब हमें समझ में आया होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. एन इंडिविजुअल विथ आयडेंटिकल अलील इज सेड टू बी होमोजाइगस. समजा माझ्यामध्ये आय बी, तो आय एम होमोजाइगस फॉर बी. An individual with dissimilar allele for a given trait is heterozygous. तो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, पर अगर मुझे एक पेरेंट से आई बी आया और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आए तो मैं तो बन गया हेट्रोजाइगस. तो सुनो, होमोजाइगस इज आल्सो कॉल्ड प्योर, हेट्रोजाइगस इज आल्सो कॉल्ड इम्प्योर और हाइब्रिड. इम्प्योर और हाइब्रिड. तो हमें अब एक चीज समझ में आई अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. और दो चीजें देखते. तो देखो, कैपिटल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस. पहला फर्क क्या है? तो सर होमोजाइगस में दोनों अलील सेम रहते, हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर रहते. दूसरा फर्क, गमिट के बारे में सोचो. सर कैपिटल टी इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गमिट, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस डिसिमिलर गमिट्स. म्हणजे कैपिटल टी 50%, स्मॉल टी 50%. तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में पहला फर्क लिखो. इन होमोजाइगस इंडिविजुअल द अलील्स आर आइडेंटिकल, इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल द अलील्स आर नॉट आइडेंटिकल. दूसरा फर्क लिखो, होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस वन टाइप ऑफ गमिट, या फिर ये होमोजाइगस इंडिविजुअल जितने भी गमिट बनाए दे आर सेम. हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ गमिट. मैं टू टाइप ऑफ गमिट नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर होता तो फिर तो 4 गमिट बनते थे. तो इसीलिए इट प्रोड्यूसेस डिसिमिलर गमिट्स. आगे सुनो, तीसरा फर्क, होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ प्रोजेनी. मतलब ये प्लांट है प्योर टॉल, तो आप कई जनरेशन तक इसको सेल्फ करो, इट प्रोड्यूस टॉल ओनली. सो होमोजाइगस इंडिविजुअल ब्रीड्स ट्रू. टू ब्रीड ट्रू मीन्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्रोजेनी. और इसीलिए सेल्फ पॉलिनेटेड हमेशा होमोजाइगस रहते, और होमोजाइगस अपने जैसे कोई जन्म देते. एंड हेंस इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स द फार्मर नीड नॉट टू परचेज द सीड एवरी ईयर.
शेतकरी दादांना विचारा, ग्राम माने हरभरा, सोयाबीन, तुअर, मूंग, उड़द, इसके घर के ही बीज की बुआई क्यों होती? क्योंकि ये सारे सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा मिलता, और फिर प्रोजेनी कैसी होगी एवरी जनरेशन? सेम। हेट्रोजायगस इंडिव्हिज्युअल डू नॉट ब्रीड ट्रू. म्हणजे सर एक प्लांट दिसायला टॉल आहे, सो दिस प्लांट इज टॉल, बट दिस टॉल इज हेट्रोजाइगस. अब इसका सेल्फिंग करो, इट विल प्रोड्यूस टॉल एज वेल एज ड्वार्फ इन अ रेशो ऑफ 3:1. दॅट इज कॉल्ड सेग्रिगेशन. आणि म्हणून जे हायब्रिड सीड आपण आणतो बाजारातनं, तर त्या हायब्रिड सीडपासून जी प्रोजेनी तयार होते त्याचे सीड पुढच्या वर्षी लावत नाही. फर्ज करो एक पैकेट हमने कैपिटल टी स्मॉल टी सीड्स खरीदे, एक पॅकेट कॅपिटल टी स्मॉल टी हायब्रिड टॉल सीड्स आपण विकत घेतले आणि पेरले. सगळे प्लांट कसे असतील? टॉल. पर जब उस टॉल प्लांट को वापिस सीड आएंगे और वो अगर हमने उसकी बुआई करी, तो यू विल गेट इन नेक्स्ट जनरेशन टॉल एज वेल एज ड्वार्फ इन अ रेशियो ऑफ 3:1. दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर. तो होमोजाइगस इंडिविजुअल आइडेंटिकल अलील, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल डिसिमिलर अलील. homozygous individual one type of gamete, heterozygous individual dissimilar gamete. Homozygous individual breeds true, produce same type of progeny. Heterozygous individual do not breed true, do not produce same type of progeny. ये है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में. एग्जाम्पल, तो मग होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल T स्मॉल t. Example is more important. IB homozygous B, IB small I heterozygous B. So let us stop here. Thank you.